Megawatt, what is user's accuracy? Yes, megawatt. Next, Parul. Yes, Parul. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So, ma'am, user accuracy tell us about the number of correctly classified pixel in each category, which is divided by total number of classified pixel in that category. So what is the meaning of this one? This one is the formula that you are telling. So, ma'am, it tells the pixel classified on the map uh, represent the represent the ground testing pixel. Okay. Next, Praveen, what is producer's accuracy? Um, Yes, Praveen, yes, ma'am. what is producer's accuracy? Ma'am, it is the ratio column of xij and x xj and not. Okay. Ruchi, Yes, ma'am. yes, what is producer's accuracy? And it is the probability of reference pixel being correctly classified, and it is measure of omission error. What is omission error? Ma'am, error that occurs in the pixels, ma'am. That classes, ma'am. Okay, next, Sabyasachi, what is producer's accuracy? Sabyasachi, do you want to answer this question? Okay, next, Shivam. Yes, ma'am. Yeah, what is producer's accuracy? Ma'am, the total number of correct pixels divided by the total number of pixels. Plus. Okay, okay. So let's see what is the meaning of all these terms one by one. You know, when we carry out the classification, like you have learnt about the classification, that you can do either supervised or unsupervised, whatever you want. But once you have done the classification, you need to determine whether that classification is correct or not. Like in any of the subject that we have studied, if you are coming to a conclusion, if you are showing any of the result, it is necessary to validate that result, isn't it? That I am coming to this, like this is my answer, this is my result. If somebody asks to me whether my result is correct or not, I need to give them, I need to show them validation part. So whatever work you do, always remember that result section is always followed by the validation section. We need to validate our result, we need to prove that yes, our results are correct, we need to show them. Here in SIP, when we carry out the image process, image classification, the validation part is done by using the classification accuracy assessment.
By using this accuracy assessment technique, we convey that yes, our classification is correct. For this purpose, first of all, we need to build a matrix called error matrix. It is also known as the confusion matrix. How this matrix is created, like one is given over here on the screen, C11, C12 up to CIM. Similarly, for each of the classes, suppose there are M classes, so this is how this confusion matrix will be created. Another example that you have seen in that PDF was this. This is how the confusion matrix is created. This is how the error matrix is created. See this part very carefully. There are two things. First one is ground reference test information, or in simple terms, ground truth. On the left hand side, there is a map class or classifiers data. Write it down in your copy. What you need to note, that this is what? This is ground truth. Okay, then what is this? This is classifies data. Okay, so this is the two part. This is the ground truth, which is also known as ground reference test information. And at this place, you can see that there is a class map, which is also known as the classifier data. Now, before making this particular matrix, what is required? What exercise we need to do? Anyone? Before making this error matrix, what exercise we need to do? Ma'am, we firstly take a random or a systematic sample of all the classes. For example, we have initially 5 class when we are performing the classification. So we will mark for like 10 points of for each classes. It depend on our study area how much we have to take samples. And so firstly we will mark all the area, then for each classes we will see the ground truth data. So if we don't have a ground truth data, we take information from Google Earth imagery. So we mark these on Google Earth imagery, and then we see how मतलब मैम points कहाँ lie कर रहे हैं. Then we see this information through this matrix. Yes, correct. Like suppose we have 5 classes. Okay, just suppose we have 5 classes. Now, how this matrix is created? We have 5 different LULC classes, so we need to take a sample. Now, how many sample need to be taken? It is again a question, and there are different statistical measures that decide how many samples that we need to take. Okay, like suppose my first class is agriculture. What I will do? I will take suppose 50 random positions on my map. You can generate the random point. In QGIS, we have learned how to generate a random point. So first thing I will do is I will generate 50 random points on the classified image. Thereafter, there will be 2 values corresponding to each of the point. What are these 2 values? First value, which is given by the classifier. What is classified data? Means once you have done the supervised classification or unsupervised classification, whatever you are using, there will be some output. There will be some LULC class that will be associated with every pixel. So one data is the LULC class that is obtained by the classifier. Second thing is, whether that thing is present or not, we need to collect a ground truth over there. How ground truth is collected? Again, there are different manners. First thing is, as the name suggests itself, that we go to the ground and collect the in situ data over there. We actually
go for the field survey and check whether at that place agriculture is present or not. If agriculture is present, then it's okay. If it is not present, then which class is present at that very place. Okay, so this is how we will get two values. First one is the classifiers value, which is given over here, classifier data. The LULC class, which is associated with that pixel, and it is given by the classifier. Second thing is corresponding to that location, what is actually present, and what is actually present, how this data is obtained by doing the field survey. We will visit the ground and check whether that thing is present or not, or what thing is present at that place, which land use land cover category is present at that location. Ground truth collection can be done in a different manner. First and the foremost is field survey, but it is not always possible to visit every location. Like suppose if you are studying some foreign location, you cannot go at that place and collect the ground truth data over there. So what is the possible alternative? The other alternatives are high resolution imageries. We can take a high resolution image data, and with the help of that, the validation could be done what is actually present at that place. Next, if we do not have a high resolution image, because it is usually not available with us, its cost is very high to acquire. So what we do, we will go for the Google Earth. Okay, on the Google Earth, again, we have a high resolution data. We have a time slider. We can take different time over there, and with the help of that, we can see what is present at that place. Another method, first one is ground survey, second one is high resolution data, third one is Google Earth. Another manner is we can take the topographic map of that region. Although it is not a very good option. Why? Because of the temporal difference, time difference between the topographic map and the image on which we are carrying out the accuracy assessment. Like suppose if I am taking 2022 imagery and taking the ground truth from the topographic map whose year of creation is somewhere 2009 2010, then that data itself is very old. But many times, even though it is not a good data, many times we have to come to that one. Why? Because none of the other things solves our purpose. Even if you take the Google Earth, you need to interpret that data, and many times it is not clear what is present at that particular location. So we may take topographic map of that area, not for all the things, but some of the things. Like suppose there is some man-made feature which is well established, and usually they do not get away from that one. There is more urbanization, there is more increase in the built-up region, but existing thing will be there. So although it is not very correct thing, but still we can take that topographic map. So this is how we will get two values corresponding to each of the location. I hope this thing is clear to everyone. Is there any confusion how two values are coming? Why we need two values? Because in this matrix, as you can see that there are two types of data which I have written, ground truth and classified data. हमें दो तरीके के डेटा की आवश्यकता है, एक ग्राउंड ट्रूथ की और दूसरी क्लासिफायर की. दोनों के डेटा कहाँ से आएंगे? क्लासिफायर के डेटा में कोई दिक्कत नहीं. क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि आपने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो भी आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम लोग QGIS यूज करते हैं, ArcGIS यूज किया जा सकता है, या बेहतर होता है कोई इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडास यूज किया जा सकता है, इल्विस यूज किया जा सकता है, एनवी यूज किया जा सकता है. इस तरीके के जो एक डेडिकेटेड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उनको यूज करके क्लासिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है. तो क्लासिफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो कौन सा डेटा होता है इनमें से? यस, इन दोनों में से ये दो डेटा जो दिए हुए हैं, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कैरी आउट करें तो हाँ शिवम बताइए. यस शिवम बताइए. हेलो, यस शिवम. क्लासिफायर. हेलो, हाँ शुभम बताइए आंसर.
मैम क्लासिफाई सॉफ्टवेयर। ओके, यस, क्लासिफायर डेटा होता है जो हमको वहां से मिलता है जब LULC क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन की कोई भी टेक्निक, यहाँ टेक्निक की बात नहीं हो रही है, चाहे सुपरवाइज कराइए चाहे अनसुपरवाइज कराइए, कोई भी कराइए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसीजर में क्या अंतर है वो यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर अल्टीमेटली जो आपको LULC मैप मिला, जो एक थीमेटिक मैप मिला, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, कैसे मिला ये बात नहीं हो रही है। तो कोई भी टेक्निक लगाकर आपने किया, आपको एक जो फाइनल रिजल्ट मिला, एक LULC जो मैप मिला, उससे आपको हर एक पिक्सल के अगेंस्ट में क्या वैल्यू है, कौन सा LULC कैटेगरी है, उसकी इंफॉर्मेशन उससे मिल गई। अब इसको बनाने के लिए क्या बोला जा रहा है, हमें चेक करना है कि ठीक है, हमने प्रोसेस कर दिया, हमने LULC क्लासिफिकेशन कर दिया और कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हमें वैलिडेट कराने की जरूरत हमेशा पड़ती है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखते होंगे कि जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें वैलिडेशन के स्टेप्स आपको सिखाए जाते हैं। उनको सभी सब्जेक्ट्स में आप हमेशा उनको अच्छे से सीखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तो पार्ट हो गया क्लासिफाइड डेटा का, जो क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पर क्लासिफायर का जो डेटा है वो ठीक है, लेकिन आपको एक रेफरेंस डेटा की भी तो जरूरत पड़ती है, एक बेस लाइन की जरूरत पड़ती है, बेस की जरूरत पड़ती है, जिससे आप कंपेयर कराते हैं। वो क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर ग्राउंड ट्रुथ है। ग्राउंड ट्रुथ कैसे कलेक्ट क्या करना है उसको बता दिया आपको, अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे अच्छा फील्ड सर्वे, इंस्टीट्यू डेटा कलेक्शन, बट हमेशा ये संभव नहीं होता कि आप इंस्टीट्यू डेटा कलेक्शन कराएं। साथ ही साथ एक और चीज, अगर टेम्पोरल एनालिसिस चल रही है, मतलब कई सालों का डेटा लेकर के आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो फील्ड सर्वे के लिए तो आप केवल प्रेजेंट डेटा ही तो ला सकते हो। 2022 के डेटा को आप फील्ड सर्वे से वैलिडेट कर सकते हो, 2021 के डेटा को नहीं कर सकते। तो ऑल्दो फील्ड सर्वे बहुत अच्छा, एकदम सबसे एक्यूरेट ऑप्शन हमारा क्या होता है, फील्ड सर्वे ही है, लेकिन फील्ड सर्वे हमेशा कर पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आपको बता दिया कि एक लिमिटेशन, आप हर जगह जा नहीं सकते। दूसरा लिमिटेशन कि आप केवल आज के समय का, नियर बाय टाइम का ही आप वैलिडेट करा सकते हैं ग्राउंड पे जाकर के। पास्ट का से 1 साल पहले, 6 महीने पहले के डेटा को वैलिडेट नहीं करा सकते। तो एक ग्राउंड ट्रुथ कलेक्ट करने का एक तरीका फील्ड सर्वे हो गया। दूसरा, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी का काफी यूज किया जाता है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगेन वही समस्या आती है कि आपके पास में हाई रेजोल्यूशन इमेज रहेगी नहीं है। तो फिर तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, गूगल अर्थ, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो एक्चुअल में यूज किया जाता है, वो प्रैक्टिकली जो यूज होता है वो गूगल अर्थ ही होता है। सो गूगल अर्थ पे उस लोकेशन को मार्क किया जाता है और चेक किया जाता है वहां पर क्या चीज प्रेजेंट है। फोर्थ ऑप्शन आपको जैसे बताया गया, टोपोग्राफिक मैप होते हैं, बहुत पुराने होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ना होने की स्थिति में हमें वो चीज यूज करनी पड़ती है। तो एक इट्स लाइक वन ऑफ द वे, आप सर्वे ऑफ इंडिया का टोपोग्राफिक मैप ले लीजिए, आप गूगल अर्थ ओपन कर लीजिए और मिला जुला करके ये वैलिडेशन का पार्ट कैरी आउट होता है। तो ये 2 डेटा हमें मिल गए, कैसे प्रोसीड करना है समझ में आ गया। जैसे 5 क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास एग्रीकल्चरली रैंडमली हमने 50 पॉइंट्स मार्क कर दिए जो कि एग्रीकल्चर के हैं, है ना। क्योंकि सैंपल कितना लेना ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम लोग काम करते हैं, कि हर एक क्लास में कितने पॉइंट को आप वैलिडेट कराइए। अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेजर हैं, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, बट हर एक क्लास का आपको कुछ रखना पड़ेगा कि हमें इतने एग्रीकल्चर के, इतने बिल्टअप के, इतने बैरन के, इतने सैंड के पिक्सल लेने हैं जिनके अगेंस्ट में हम वैलिडेशन कराएंगे। ठीक, या कई बार क्या किया जाता है, ओवरऑल पूरी की पूरी इमेज में, जैसे कि हमने सपोज 300 पॉइंट्स रैंडमली ले लिए और उन 300 पॉइंट्स पर हमने जाकर के चेक किया वहां पर LULC क्लासिफायर से क्या निकला है और ग्राउंड ट्रुथ के हिसाब से क्या निकला है। हर एक क्लास के लिए हमारे पास में सारा डेटा आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स बन कैसे रही है। ये मैट्रिक्स जो कि एरर मैट्रिक्स कहलाती है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहलाती है, इसको अरेंज कैसे किया जाता है, क्योंकि आगे का पूरा एक्यूरेसी असेसमेंट पूरा का पूरा इसी मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। चलिए,
क्या किया जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, जो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर के बॉक्स से बने हुए हैं, x11, x22, x33, xk। सपोज यहाँ पर क्या बोला गया कि k क्लासेस हैं, या हम अपने टर्म में बोले तो 5 क्लासेस हैं, तो हमारी एरर मैट्रिक्स कितनी बड़ी बनेगी? 5 क्रॉस 5 की, या k क्रॉस k की। मतलब जितने एलिमेंट्स की क्लासेस होंगे उतने की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन जाती है। ठीक। डायगोनल में अब हम क्या रखते हैं? डायगोनल में उस काउंट को रखते हैं कि सपोज क्लास 1 क्लासिफायर के हिसाब से कितने पिक्सल क्लास 1 में है, जो कि ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से भी वहीं पर है। यह हमारा पहले डायगोनल एलिमेंट में जाता है। इसी तरीके से क्लास 2 के वो पिक्सल जो कि क्लासिफायर के भी हिसाब से क्लास 2 में थे और ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से भी क्लास 2 में थे। इस तरीके से ये पूरे डायगोनल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। मतलब क्लियर हो गया होगा आपको कि क्लासिफायर और ग्राउंड ट्रूथ दोनों सही है, अगर दोनों सेम है, उस उतने काउंट को यहाँ पर हम लोग अलोंग द डायगोनल रखते हैं। ऐसे पिक्सल जो कि सही क्लासिफाइड हो, जो ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से भी वही है और क्लासिफिकेशन के भी हिसाब से वही क्लास आ रही है, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो सपोज पहला हमने बोला एग्रीकल्चर, तो कितने ऐसे पिक्सल हैं जो कि क्लासिफायर के भी हिसाब से एग्रीकल्चर है और ग्राउंड ट्रूथ के भी हिसाब से एग्रीकल्चर है, पहला। दूसरा बिल्टअप, तो कितने ऐसे पिक्सल हैं जो क्लासिफायर के हिसाब से भी बिल्टअप है और ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से भी बिल्टअप है, ये अगला आ गया। फिर नेक्स्ट बैरल लैंड, कितने ऐसे पिक्सल हैं जो क्लासिफायर के हिसाब से भी बैरल लैंड है और ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से भी बैरल लैंड है। तो इस तरीके से ये पूरा अलोंग द डायगोनल ये अरेंज किया जाता है। अब बात आती है बाकी बचे पिक्सल की। ठीक है, x12, x13 अप टू सो ऑन, सिमिलरली x21, x31 एंड सो ऑन। इनका क्या मतलब होता है बताइए, कोई बता सकता है इनका क्या मतलब होगा? यस सुमित। मैम x21 का मतलब ये है कि सेकंड कैटेगरी के कितने पिक्सेल्स फर्स्ट कैटेगरी हैं जो फॉल्सिफाइड एंड लेबल्ड हैं एज अ कैटेगरी 1। फिर से बताइए। मैम कि सेकंड जो अगर if I take 2 as a second category second class and 1 as a first class, then second class के कितने ऐसे पिक्सेल्स हैं जो falsely labeled हैं as a first class? नहीं, अपोजिट बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए फिर से। अच्छा यस मैम, हाँ कि कितने फर्स्ट क्लास के हैं जो लेबल्ड हैं एज ए सेकंड क्लास इफ आई टॉक यस अबाउट x21। यस यस, सब लोग चीज ध्यान से देखिएगा कि ये देखिए ग्राउंड ट्रूथ कहाँ पर है, इसको देखिए, है ना। ये वाला मिस्टेक जो सुमित ने किया ये बाकी लोग भी करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ग्राउंड ट्रूथ आपका कहाँ पर है। ग्राउंड ट्रूथ यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि जो कॉलम की वैल्यू होगी वो ग्राउंड ट्रूथ की वैल्यू होगी ना, और जो रो की वैल्यू होगी वो क्लासिफायर की वैल्यू होगी। x21 ये पोजीशन क्या है? ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से ये कहां पर है? क्लास 1 पर है। क्लासिफायर के हिसाब से कहां पर है? ये क्लास 2 में है। समझ में आया? इसी तरीके से x23 इसका मतलब क्या है? कौन कौन से पिक्सल या कितने पिक्सल एक्चुअल में कैटेगरी 3 के थे, एक्चुअल में ये बैरन के थे, बट किसमें कैटेगराइज हो गए हैं? हमें बिल्टअप में दिख रहे हैं। जैसे उसको एग्जांपल दे देते हैं।
जैसे ये हम लोग ने लास्ट टाइम पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो ये रिवर था और रिवर के बीच में जैसे ये पर्टिकुलर एरिया आ गया, ठीक है। ये हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपन ग्राउंड है, ये हमें पता था। तो ये वाला जो यहाँ पर रेड कलर से ये जो बिल्टअप दिख रहा है, जहाँ पर अभी हम अपना कर्सर मूव कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा एरिया है जो ग्राउंड ट्रूथ इसका अगर हम देखें, ग्राउंड ट्रूथ अब हम इसका कैसे देखें, ये देखिए, इसका ग्राउंड ट्रूथ देखने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा अपना थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसे पिक्सल है जो कि थे सपोज बैरल लैंड के या ओपन लैंड के, बट क्लासिफाई किस में हो रहे हैं, अर्बन में। तो ये यहाँ पर कहाँ पर लाई करेंगे, इनकी पोजीशन क्या होगी, x23। क्लासिफायर के हिसाब से आपने क्या आउटपुट देखा, क्लासिफायर के हिसाब से आउटपुट आपको यहाँ पर अर्बन दिख रहा है, बट एक्चुअल में वहां पर क्या है, सपोज वहां पर बैरल लैंड एक्चुअल में था, तो इसका पोजीशन क्या होगा, x23। इसी तरीके से ये देखिए x22 क्या होगा, जैसे यहाँ पे जितने भी आपको पिक्सल दिख रहे हैं, ठीक है, ये पिक्सल आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऐसे एरिया है जो अर्बन में कैटेगराइज हुए हैं और एक्चुअल में भी अर्बन में थे। यहाँ पर कुछ कुछ जगह आपको मैजेंटा कलर की, पिंक कलर की यहाँ पर दिख रही है, तो ये क्या है, ये ऐसे पिक्सल है जो एक्चुअल में थे तो अर्बन के, बट क्लासिफाई किसमें हो जा रहे हैं, अर्बन में, क्योंकि अर्बन और बैरन का सिग्नेचर काफी हद तक मैच करता हुआ रहता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम हमारी आती है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस समय, बट इस तरीके से सुपर ओवरले क्रिएट करा करके हम लोग इसको व्यू करते हैं, ठीक है। किसी को आइडिया इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ओके, नेक्स्ट टर्न पे हम इसको रिजॉल्व करके आएंगे, कोशिश करेंगे, बट एनी हाउ आप इस चीज को यहाँ जैसे देख सकते हैं, ये जगह थी, तो हम यहाँ पर अगर वैसे नहीं जा पा रहे तो ऐसे जाकर दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है ये सारा पूरा का पूरा बिटवीन दी रिवर, ये पूरा का पूरा पोर्शन ओपन ग्राउंड का है ना, तो यहाँ पर ओपन ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर बिल्टअप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे क्लासिफाइड इमेज में हमको क्या मिल रहा है इस एरिया में, ये यहाँ पर हमें एक बिल्टअप का पैच यहाँ पर पूरा पूरा दिख रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा दिख रहा है, तो ये सारे क्या है, एरर्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा पूरा ओपन ग्राउंड है। इस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पर हमारा दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर पिक्सल्स कैसे हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, कॉलम, ये तो आपने अलोंग दी रो देखा किस तरीके से मतलब हुआ, अलोंग दी कॉलम देखिए, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 से देखते हैं कि हमारा बिल्टअप है, ठीक है बिल्टअप, लेकिन वो एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत कम चांसेस है ऐसा होना, बिल्टअप है एक्चुअल में, ठीक है,
लेकिन वो कैटेगराइज किस में हो जा रहा है? बैरन में। ऐसा कहां पर हो रहा है? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, या कुछ कुछ पिक्सल कई सारे ऐसे हो रहे हैं जो कि पिंक कलर के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअल में है बिल्टअप, लेकिन कैटेगराइज किस में हो जा रहे हैं? बैरन में। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है? इसको इस तरीके से अलोंग दी कॉलम दिखाएंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये पूरा मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड ट्रूथ और क्लासिफाइड डेटा अलोंग दी रो जब आप चलोगे तो पूरा का पूरा क्लासिफाइड डेटा होगा। अलोंग दी कॉलम जब हम चलते हैं देन इट इज द ग्राउंड ट्रूथ, ठीक है? इसी के बेसिस पर आगे की सारे जो एरर्स की जहां अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, कौन कौन सी एरर्स? ओवरऑल एक्यूरेसी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी, यूजर्स एक्यूरेसी, कप्पा कोएफिशिएंट, ठीक? ये 6 डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए इसी मैट्रिक्स को हम लोग यूज करेंगे। इस मैट्रिक्स को लेकर के अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। अभी कोई भी चीज अगर आपको इस मैट्रिक्स की समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए। मैम ये क्लासिफायर डेटा वाले में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मतलब हाउ वी आर क्रिएटिंग इट, आर वी क्रिएटिंग लाइक वी आर डूइंग इन सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन? हाउ वी मैम आर मतलब कि जो क्रिएटिंग मीन्स मैम जैसे ये टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग रोज में क्लासिफायर डेटा ले रहे हैं, तो मैम ये जो क्लासिफायर डेटा है हम जब सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में एक एक सैंपल्स लेके उसके बाद जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या मैम वही वैल्यूज को हम यहाँ पे इम्पोज करते हैं? सुमित म्यूट कर लीजिए आप अपने को। ओके देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सुपरवाइज्ड हो अनसुपरवाइज्ड हो, इससे हमें कुछ नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर किस तरीके से क्लासिफाइड डेटा जनरेट हो रहा है यहाँ पर वो क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन उसके बाद का है। वंस क्लासिफिकेशन इज डन, कैसे हो रहा है डजंट मैटर, होने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया अब यहाँ पर वहां की बात हो रही है। चाहे कोई भी क्लासिफिकेशन टेक्निक आप यूज करें, फाइनल रिजल्ट आपका क्या होता है? इट इज अ LULC मैप। जो फाइनल रिजल्ट आता है क्लासिफिकेशन के बाद का, द अल्टीमेट रिजल्ट इज अ LULC मैप। कैसे आ रहा है ये नहीं मैटर है, जो भी रिजल्ट आ गया, जो भी चाहे कोई भी टेक्निक यूज करके आया हो, एक बार रिजल्ट आ गया उसको हम ग्राउंड ट्रूथ से कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करते हैं और ट्रेनिंग कराते हैं, और ट्रेनिंग में भी यही सारी बातें करते हैं कि हमें वहां से ग्राउंड ट्रूथ लेना है सैंपल लेने के लिए, या गूगल अर्थ की हेल्प से सैंपल ले लीजिए, या हाई रेजोल्यूशन इमेजरी की हेल्प से सैंपल ले लीजिए, तो यस वहां पे भी आपको ग्राउंड ट्रूथ देखना पड़ता है, लेकिन वहां पर्पस कुछ और होता है। पर्पस क्या होता है? क्लासिफायर को ट्रेन कराने का वहां पर पर्पस होता है। यहाँ पर पर्पस कुछ और हो गया। यहाँ पर्पस क्या है? क्लासिफायर के आउटपुट को वैलिडेट कराना, उसको जज करना, उसको असेस करना कि क्या वो आउटपुट सही आया है कि नहीं आया है। बाकी आप जो शायद पूछ रहे हैं ये एक तरीके से, ये अभी यहाँ नहीं डिस्कस हम करना चाहेंगे, लेकिन कई बार क्या किया जाता है कि जब आप ट्रेनिंग कराते टाइम सैंपल लेते हैं तो वहीं से हम लोग एक सर्टेन पोर्शन दोनों तरीके से लेते हैं कि ट्रेनिंग में भी यूज हो जाए और टेस्टिंग में भी यूज हो जाए। ये आप लोग सुनते होंगे 70-30 रेशो ले लिया, 70% से ट्रेन करा दिया, 30% से टेस्टिंग करा दी। वो एक अलग मैटर है, वहां पर नहीं जा रहे हैं हम, लेकिन हाँ वहां पे भी जब आप ट्रेनिंग कराते हो तो इस तरीके का काम करते हो, लेकिन उसका पर्पस क्लासिफायर ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे भी हम ग्राउंड ट्रूथ चेक करते हैं, और उसका पर्पस क्या होता है? क्लासिफायर के आउटपुट का असेसमेंट करना। बाकी ग्राउंड ट्रूथ हम क्या ले रहे हैं, कौन से लोकेशंस पे ले रहे हैं, क्या हम ट्रेनिंग कराते टाइम जो सैंपल लिए थे क्या हम उसको रिपीट कर सकते हैं, ये देखना पड़ता है हमको। बट यूजुअली हम लोग एग्जैक्टली सेम डेटा सेट नहीं ले लेते कि जो ट्रेनिंग कराई जहां पर वही हम एग्जैक्टली एक्यूरेसी असेसमेंट का करा देंगे,
क्योंकि तब रिजल्ट्स जो है वो सही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो ट्रेनिंग में जिस डेटा को यूज किया वही डेटा अगर आपने लेकर के टेस्टिंग करा दी तो रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रेनिंग में अगर वो सैंपल दिया तो क्लासिफाई तो उस रिजल्ट को सही दिखाएगा ही दिखाएगा। एटलीस्ट जहाँ ट्रेनिंग कराई है उस पोर्शन को सही दिखाएगा ही। इस कारण से हम लोग टेस्टिंग में ट्रेनिंग डेटा एज इट इज यूज नहीं करते। होप क्लियर हो गया होगा सुमित आपको? यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? Ma'am, if we get a non-diagonal, off-diagonal elements that xij values as 0 for most of the classes, then can we say that our classification is true to the ground? Yeah, means ideally the error matrix should have 0 as the non-diagonal elements. Only the diagonal elements have some value, numeric value. Otherwise, all the non-diagonal values should be 0. But actually, this thing is not going to take place. There will be some of the error which are getting misclassified. So if there is a very small values at the non-diagonal position, then it is a good classification. But we cannot say that thing directly. For that purpose, we have different parameters that we are going to discuss. The overall accuracy, error of omission, error of commission. All these things will reflect about the non-diagonal elements, about the status of the classification or what is on the diagonal and what is on the non-diagonal. Okay, so just by inspecting this matrix, this confusion matrix, we can say that thing informally. But formally, when we state, we do not state like this, where that, see, this is my confusion matrix, and see that the non-diagonal elements are either 0 or they have a very less value. No, we do not use such type of statement. What we will use for this purpose, for saying the same thing, we have parameters. What are those parameters or what are those measures? Overall accuracy, error of omission, error of commission. All these are the things which are present to say the same thing in a proper manner. Clear? Yes, ma'am. Okay. Any other question? If you have any doubt, please ask, because this is the most important part of the whole accuracy assessment. Okay. See, this blue color part is the matrix, and see this pink and green color part. So whenever we make a matrix, we usually make it in this manner. This is how we make this one. All the rows are summed together. See the notation. See the notation of the row total x1 plus. This is how we write the row total. x2 plus, x3 plus. So if somewhere such type of thing is written, you must be able to understand that what is the meaning of row total and what is the notation. It is basically xi plus. This is the notation for row total. Similarly, there will be a column total. How this is depicted? By using the notation x plus j. Okay, so you can see it in a green color over here, x plus 1, x plus 2, x plus 3, and so on. Finally, there is one more element which is n. What is the meaning of this n? N means total number of pixels that are considered in this whole matrix. So how we can obtain n? n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस सुनील, यस मैम। बताइए ये n की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटल एन दिया है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? मैम सभी क्लासिफाइड डेटा और ये जो और ये ग्राउंड ट्रूथ की जो डाटा है उसमें ऐड कर। ओके, और कोई इससे इजी तरीका? मैम डायगोनल ऐड करते नहीं, डायगोनल से कैसे मिलेगा? n इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स। डायगोनल क्या है? करेक्टली क्लासिफाइड पिक्सल है। कैपिटल M क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जो कि इसमें यूज हुए हैं, भले ही वो करेक्टली क्लासिफाइड हो चाहे नहीं हो, मिसक्लासिफाइड हो, लेकिन कितने कंसीडर किए गए? कैपिटल N की वैल्यू कैसे निकलेगी?
Yes, Jayashree? Ma'am, I think it is based on the sample data that we consider. Yeah. How we can get this value of n from this matrix? If we calculate all the pixel values at Xij, This is what the Sunil has also answered. But I am saying that there is a little bit more easier way to calculate this value of n. Yes, this is one of the way that we can take the summation of all the counts which are given over here. This is one of the way, but any easier way? directly from the row total and the column total. Both row total plus column total, is it? Yes, ma'am. Okay. Vibham? Yes, ma'am. If there is 5 class, then matrix will be 5 into 5. So 25 will be the number, ma'am. No. This is not what we are saying. We are saying that total number of pixel 5 into 5, 25. There will be 25 cells in this particular matrix. Okay. N is not about the total number of cells or no total number of entries. It is about total number of pixels that are considered. Ma'am, Then, only of row Yeah. only of row Just, total. okay. Yes, Vibham. Continue. yes, ma'am. In that case, either column total or row total, ma'am. That value Yes. will be taken. Yes. Yes. This is the correct answer. Either the row total, do the total of either row total or do the total of either column total. Means x1 plus x2 plus x3 plus and so on. है ना, जितना भी रो टोटल में जितना भी आ रहा है चाहे उनका सम कर दीजिए तो एन आ जाता है, या कॉलम में जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनका सम कर दीजिए, उससे आ जाएगा। है ना, यही तो हो रहा है। कॉलम का टोटल क्या दिखा रहा है, हर एक कॉलम के अलोंग टोटल दिखा रहा है, और रो क्या दिखा रहा है, हर एक रो के अलोंग टोटल दिखा रहा है। ये मिस्टेक काफी करते हैं स्टूडेंट कि वो रो टोटल प्लस कॉलम टोटल को भी ऐड, जो अभी पहला आंसर जयश्री ने दिया, रो टोटल प्लस कॉलम टोटल इक्वल टू कैपिटल एन, नहीं, ये गलत आंसर है। आइदर रो टोटल और कॉलम टोटल इट विल बी इक्वल टू एन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एन निकालने के लिए आपको सारे के सारे सेल की एंट्रीज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, वो काफी लंबी टास्क होते आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रो टोटल और कॉलम टोटल यहाँ पर लिख रहे हैं, तो किसी भी एक का सम कर दीजिए, आइदर रो टोटल कर दीजिए, सम कर दीजिए, और द सम ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट हम लोग ओवरऑल एक्यूरेसी से देखना शुरू करेंगे, बट उसको करने से पहले 10 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे।
Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So before going for the break, we have learned about about the error matrix or the confusion matrix, and we have learned how to create that matrix, how to read that matrix. Now we are coming to the different things that are calculated on the error matrix. First one is the overall accuracy. So it is computed by dividing the total number of classified pixels by the total number of reference pixel. Means it will give you the overall accuracy of the classification. How we will do this thing? So here, as you can see, all the diagonal elements, sum of all the diagonal elements divided by total number of elements, which means x11 plus x22 plus x33 up to xkk divided by capital N. Okay. So this is how we will calculate the overall accuracy. Second one, error of omission. Omission, what is the meaning of omission? It is exclusion. If you omit something, means if you are not including something in that one. So this is what it is, error of omission. Now if you see this one again, for class 1, what will be how many pixels will come under the error of omission? What will be the count of number of pixels as error of omission? Yes, anyone? Error of omission means that you have excluded something from that class. So for the class 1, what will be the value of error of omission? What will be the count of number of pixels that will fall under the category of error of omission? Ma'am, I think except the correctly classified pixel, the remaining of the other for that particular class. What will be the value? Whether it is x12 plus x13 or x21 plus x31 or both x12 plus x13 plus x21 plus x31. It will be summation of the pixels in class 1 total minus the correct one. That will be the omitted value. So it is x1 plus minus x11 or x plus 1 minus x11. Ma'am, please pardon. x1 plus minus x11. Is it? Because ma'am, x max, yes ma'am, x ground reference point is the main point, so x plus 1 minus x11. Yes, ma'am. Now it is x plus 1 instead of x1 plus. Yes ma'am, column 1. Yes. So this is the correct answer. It is the summation of non-diagonal column element, which is x2 plus x21 plus x31 plus x41 up to xk1. Why? Because as per the ground truth, all these pixels falls under the category of class 1. But where they are falling in the LULC map or the classified data, they are falling in class 2, class 3, class 4 up to class K. That's why the summation of non-diagonal column element is called error of omission. Similarly, there is another one which is error of commission. Commission means inclusion. So it is the pixel from other classes that the classifier has labeled as belonging to the class of interest. So what will be the value of that one? Ma'am, x1 plus minus x11. Yes. Or it can be x non-diagonal sum of non-diagonal row element, which is x12 plus x13 plus x14 up to x1k.
This is clear to everyone or not? This error of omission and error of commission, because on the basis of that we are going to the next one, which is producers and users accuracy. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Error of omission and error of commission. Any confusion? Anything that you want to ask? Anyone? मैम इन कमीशन एरर मैम रो की वैल्यूज ऐड करेंगे बताइए, आप बताइए। x11 plus x12 plus x13 x1k x11 प्लस, पहले बताओ एरर ऑफ कमीशन से क्या समझ, नहीं रुक जाओ, एरर ऑफ कमीशन से क्या समझते हो आप? मैम इंक्लूजन मतलब जो भी इंक्लूड कर लें हम, जो गलत तरीके से इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना, एरर की यहाँ बात हो रही है। तो एरर ऑफ कमीशन मतलब जो गलत तरीके से इंक्लूड करा जाए, एरर ऑफ ओमिशन मतलब एरर क्योंकि शब्द लग रहा है इस कारण से कह रहे हैं जो गलत तरीके से एक्सक्लूड कर दी गई हो, छोड़ दी गई हो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कौन से पिक्सल हैं, अगर हम क्लास 1 की बात करें, कौन से ऐसे पिक्सल हैं जो कि क्लास 1 में होने चाहिए थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया, उनको क्लास 1 में नहीं लिया गया? मैम x12 x13 x1k मैम। ऐसा क्यों बोल रही है? कैसे आपने सोचा कि x12 और x13 होंगे? इस मैट्रिक्स को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है? x12 का क्लास क्या है? मैम x12 का क्लास मैम 1 है। हाँ, और होना क्या चाहिए था? मैम क्लास 2 होना चाहिए था मैम। अब फिर से सोचो, एरर ऑफ ओमिशन क्या कहता है? ऐसे पिक्सल जो गलत तरीके से उस क्लास में, एक मिनट, आप किसका आंसर बोल रही हैं? मैम कमीशन का बोल रही हूँ मैम। कमीशन का नहीं, ठीक है, कमीशन के लिए ठीक है, और ओमिशन के लिए क्या होगा? मैम x11 x21 जो कि नहीं, x11 क्यों कर दे रहे हो? x11 तो करेक्टली क्लासिफाइड है ना। x11 ऐसा है कि जो क्लासिफायर के हिसाब से भी 1 में होना चाहिए और ग्राउंड ट्रुथ के हिसाब से भी 1 में होना चाहिए। हम x21 और x31 और xk1। बिल्कुल समझ में आ गया अब आपके? सब लोग ध्यान से, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। इसको देखिए, पहली बात, एरर की जब बात होगी तो ये ऑब्वियसली ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो ग्राउंड ट्रुथ के हिसाब से भी उसी कैटेगरी में थे और क्लासिफायर के हिसाब से भी उसी कैटेगरी में थे, तो यानी कि ये तो एरर है ही नहीं जो डायगोनल में दिखाई दे रही है। अब एक एक करके दोनों एरर को सुनिए। एरर ऑफ ओमिशन, जो कि मतलब इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा पिक्सल जो गलत तरीके से एक्सक्लूड, छोड़ दिए गए हो, लिए नहीं गए हो, होना चाहिए लेकिन रखा नहीं गया। तो यहाँ पर कौन से ऐसे पिक्सल, अगर आप क्लास 1 की बात करें तो कौन से ऐसे पिक्सल आप बोलेंगे कि वो क्लास 1 में होने चाहिए थे लेकिन क्लासिफायर ने उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया? तो ऑब्वियसली आप कॉलम की ओर जाएंगे। ये पूरा कॉलम ग्राउंड ट्रुथ को दिखा रहा है। ग्राउंड ट्रुथ हमें कहाँ से मिलता है? अलोंग दी कॉलम मिलता है, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉलम क्या है? ग्राउंड ट्रुथ के हिसाब से 1 में आना चाहिए, पर आ किस में रहा है? क्लासिफायर के हिसाब से 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है और k में आ रहा है। यानी कि नॉन डायगोनल कॉलम एलिमेंट्स का जो सम होगा k21 प्लस k31 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा एरर ऑफ ओमिशन, जो होना चाहिए था क्लास 1 में लेकिन ना होकर के किसी दूसरी क्लास में चला गया। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब इंक्लूजन, जिसको गलत तरीके से अपने कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया, वो उस कैटेगरी का नहीं था, वो किसी और कैटेगरी का था लेकिन इसे गलती से उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। कैसे देखेंगे? अलोंग दी रो देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो छोड़ दीजिए,
आप X12 को देखिए, X12 क्लासिफायर के हिसाब से क्लास 1 में है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से कहाँ पर होना चाहिए, वो 2 में होना चाहिए। तो था वो 2 में, लेकिन जबरदस्ती उसको कौन सी कैटेगरी असाइन कर दी गई, 1। इसी तरीके से X13 ग्राउंड ट्रूथ के हिसाब से वो LULC क्लास 3 में होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक एरर के कारण से वो किस में जाकर के असाइन हो गया, क्लास 1 में असाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो कभी भी एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम रो के अलोंग सम करना है कि कॉलम के अलोंग सम करना है। इसको याद करने की कोशिश मत करिए, याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। हमेशा इसको देखिए, इस एरर मैट्रिक्स को देखिए और सोचिए कि यहाँ पर कौन सा, मतलब कॉलम जो है वो हमेशा ग्राउंड ट्रूथ को दिखा रहा है और रो जो है हमेशा क्लासिफायर के आउटपुट को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके इसको याद करिए कि एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन क्या होगा। और कोई डाउट है अभी? कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी। क्या कह रहे हैं? इट इज द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल कैटेगरीज. It is calculated by dividing the number of correctly classified pixels in each category by the reference pixels for the class. It is the probability that the classifier has labeled the image pixel as A, given that the actual class is A. So what is producer's accuracy? It is calculated by dividing the correctly classified pixel, which is diagonal, obviously X11 for the class 1, by what? By the reference pixel for that class, total number of pixels that are belonging to that class, which is column total. So it is X11 divided by X plus 1. जो correctly classified pixel है divided by जितना उसमें आना चाहिए था, ये क्या निकल रहा है? ये प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी दिखा रहा है। प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी किसकी एक्यूरेसी होती है? ये क्लासिफायर की एक्यूरेसी होती है। मतलब अगर क्लासिफायर ने किसी को क्लास 1 में क्लासिफाई किया, ठीक है, तो वो एक्चुअल में क्लास 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी से निकालते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं जो कि यूजर्स एक्यूरेसी है। यूजर्स एक्यूरेसी क्या बोलता है? They are computed by dividing the number of correctly classified pixel in each category by the total number of pixels the classified in that class. It indicates the probability that a pixel classified into a given class actually represent that class on the ground. Means यूजर्स एक्यूरेसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? X11 डिवाइडेड बाय X1 प्लस। यूजर्स एक्यूरेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि अगर हम आउटपुट में किसी क्लास को देख रहे हैं तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है ग्राउंड पे कि वो एक्चुअल में वही प्रेजेंट हो। ठीक है, इस कारण से इसको यूजर्स एक्यूरेसी कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी हम लोग कहते हैं कि ये क्लासिफायर के लिए होती है कि क्लासिफायर ने अगर किसी क्लास को 1 पर लेबल किया तो वो एक्चुअल में 1 होगा। ये प्रोबेबिलिटी क्लासिफायर कितना सही, कितनी बार सही आंसर कर रहा है, ये प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी से निकलता है। यूजर्स एक्यूरेसी, यूजर अगर किसी को, अगर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास LULC इसका बिल्टअप है तो ये एक्चुअल में भी बिल्टअप होगा। ये हमारा कितना कॉन्फिडेंस, इसके कितने चांसेस है, ये कैसे पता लगता है? ये प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी से पता लगता है। ठीक है, तो ये आप लोग ने अलग अलग 5 डिफरेंट टर्म्स सीखे। ओवरऑल एक्यूरेसी, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, यूजर्स एक्यूरेसी एंड प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी। एक और कप्पा कोफिशिएंट बचा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल,
इसको नोट डाउन करिए अपने कॉपी पे जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग का क्योंकि 12:45 से क्विज स्टार्ट हो जाएगी। इस मैट्रिक्स को अपने एंड पर लिखिए। ये एक एरर मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, सारा चीज इसमें करके दे दिया गया है। यहाँ पर 6 क्लासेस हैं जैसे आप देख रहे हैं, वाटर, सैंड, फॉरेस्ट, अर्बन, कॉर्न है। ये ट्रेनिंग सेट डेटा या ग्राउंड ट्रुथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन डेटा सेम, वाटर, सैंड, फॉरेस्ट, अर्बन, कॉर्न है। और एंड में देखिए रो टोटल और कॉलम टोटल यहाँ करके दिया गया है। और 1992 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद में क्या करना है आपको, आपको इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी, यूजर्स एक्यूरेसी, प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी, सारी चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है। 10 मिनट्स का टाइम है, इसको जल्दी से करिए। मैम 4:30 बजे आ जाइएगा, 4
Okay, so have you done the calculation of all the accuracies? Yes, ma'am. Right, yes. Alok? Yes, ma'am. Okay. So for what will be the error of omission for each of the class? मैम सारी मैम नहीं कैलकुलेट की अभी. एरर ऑफ ओमिशन बताओ देख कर क्या स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो बताओ एरर ऑफ ओमिशन आपके लिए हर एक के लिए क्या क्या होगा वाटर के लिए क्या होगा वाटर के लिए मैम 100% 480/480. 100 नहीं क्वेश्चन सुनिए एरर ऑफ ओमिशन कितना होगा पिक्सल काउंट में ये दिया जाता है एरर ऑफ ओमिशन पिक्सल काउंट में दिया जाता है कितना होगा मैम पिक्सल काउंट मतलब क्या मैम 0. ओके सैंड के लिए मैम 16. ओके फॉरेस्ट 38 plus 5 43 मैम. यस ओके अर्बन 60 98 plus 24. मैम 122. यस 122 करेक्ट कौन मैम किसके लिए मैम सी कौन मैम 60. लास्ट वन है 79. ठीक करेक्ट नेक्स्ट अरुण एरर ऑफ कमीशन बताइए सबके लिए मैम फर्स्ट वाले के लिए 5 एंड देन 20 फिर मैम 40 फिर मैम 16 फिर मैम वेट मैम 117 and then last one के लिए 24 122 last वाले के लिए 38 plus 24 plus 60 हेलो मैम हाँ ठीक है सो एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ कमीशन सबका सेम आ रहा होगा ये सारे आंसर दोनों के आलोक या अरुण दोनों के आंसर सही थे किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए ओके नेक्स्ट मेगावत हेलो मैडम मैडम यस प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी कितनी है प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी 4.100%. मेगावत आपका ऑडियो नहीं क्लियर है हाँ नेक्स्ट पारुल यस मैम बताइए मैम क्या प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी हर एक क्लास के लिए प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी हाँ for water it is 100%, for soil it is 76.47, for fallow land it is 87.9, then for urban is 50.8, then corn 85.07, then H is H 81.96. okay correct okay Praveen Yes, ma'am. यूजर्स एक्यूरेसी बताइए सबके लिए
मैम नहीं हुआ है क्यों? मैम। ओवरऑल एक्यूरेसी निकाले थे, उसके बाद ओमिशन और कमीशन तक पहुंचे थे मैम। नेक्स्ट रुचि। यस मैम। यूजर्स एक्यूरेसी बताइए। मैम वाटर की 98.67 एंड सॉइल की मैम 72 एंड मैम जाती निकाल पे मैम फॉरेस्ट का 87.1 को। नेक्स्ट साबेसाची। Yes, Sabyasachi. Next, Shivam. Yes, ma'am. बताइए। 88.6। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो। यस। मैम फॉरेस्ट की 88.6। यस, बताते जाइए। मैम कैलकुलेट कर रहे हैं मैम। Okay, so this is the final answer. Error of omission, error of commission आप लोग ने देख लिया, and producers accuracy और users accuracy and overall accuracy इस तरीके से आएगी। किसी सॉल्यूशन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके देन, सो आज के लिए इतना ही। आज आप लोग ने एक्यूरेसी असेसमेंट के बारे में देखा। इसमें अभी एक टॉपिक अभी बच गया है, वो है कप्पा कोफिशिएंट। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कप्पा कोफिशिएंट देखेंगे और साथ में चेंज डिटेक्शन, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज डिटेक्शन के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। प्लस ट्यूटोरियल सेशन में जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट हुआ था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस टर्न पे नहीं किया उन लोग रिकॉर्डिंग या यूट्यूब लिंक जो फॉरवर्ड किया था चैट में उसको देख करके अपना बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो सीख लीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट टर्न आप लोग को समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का क्विज आप लोग के स्क्रीन पर आ गया होगा। So thank you so much. The class is over for now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.